دل ٹوٹ کے ہارا از ہما قریشی مکمل ناول۔ حیا آنکھیں کھولو پلیز، کیا ہوا تمہیں؟ اوپن یور آئیز۔ وہ ہوش و خرود سے بیگانہ تھی، اس کا سانس بالکل تھم چکا تھا، جبھی یکا یک ایک فیصلہ لیتا وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا، اسے سی پی آر دیتا۔ وہ ہر چیز کو فراموش کر چکا تھا، جبھی کسی نے حیا پر جھکے ہاتھی کو گریبان سے پکڑ کر دور کیا۔ پیچھے ہٹو بغیرت انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری منقوہہ کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ وہ چلایا جبکہ وہ بھوکلا گیا تھا، بحیثیت ڈاکٹر وہ تو صرف جان بچا رہا تھا۔ میں اس گھٹیا لڑکی کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ گھر میں شادیانے بج رہے تھے کیونکہ آج اس گھر کی لاڈلی بیٹی حیا وجدان عباسی کا نکاح اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے فارن مجید عباسی کے ساتھ تھا۔ گھر کا ہر فرد ہی خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا، جبکہ وہ سنگھار آئینے کے سامنے دلہن بنی بیٹھی اداس بلبل کی مانند لگ رہی تھی۔ اس گھر میں لڑکیوں کی کوئی مرضی نہیں تھی، ان کی خاموشی اور شرم و حیا کو ان کی رضامندی تسلیم کر لیا جاتا تھا، اور حیا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ماشاء اللہ چشم بدور، بالکل شہزادی لگ رہی ہے ہماری بیٹی۔ یہ اس کی دادی جہاں آرا بیگم تھیں، جو پوتی کی من موہنی صورت دیکھ صدقے واری جا رہی تھی۔ ماشاء اللہ اماں جان، اللہ نصیب اچھے کرے۔ یہ اس کی تائی فہمیدہ بیگم تھی۔ چلو لڑکیوں، حیا کو نیچے لے آؤ، نکاح کا وقت ہو رہا ہے۔ اسے دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا، سرخ دوپٹہ ماتھے تک ڈال کر اب اسے نیچے لے جایا جا رہا تھا، جہاں اس کا تایا زاد اس کا منتظر تھا، کیونکہ وہ اسی کی خواہش تھی، اور اس گھر کا لاڈلا کوئی فرمائش کرتا اور دادا حضور پوری نہ کرتے، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ عباسی مینشن کی جگمگاہٹیں ہی الگ تھیں، ہر سو خوشیاں رقص کر رہی تھیں، ہر چہرہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے گاڑی سے قدم باہر نکالتے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ آج اس کی محبت کسی اور کی ہونے جا رہی تھی، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکا تھا۔ وہ اس کی ماموں ذات تھی، مگر وہ اپنے نانا کے فیصلے سے انکار نہیں ہو سکتا تھا۔ السلام علیکم ہادی بھائی، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ پلیز اندر چلیں نا، نکاح شروع ہونے والا ہے۔ پھپھو کتنی بار آپ کا پوچھ چکی ہیں۔ یہ اس کے چھوٹے ماموں کا بیٹا آریان تھا، جو اس کے ساتھ قدم مینشن کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا رہا تھا۔ بس یار ایک ایمرجنسی کیس آ گیا تھا، تو ہسپتال سے نکلنے میں دیر ہو گئی۔ وہ مطمئن لہجے میں گویا ہوا اور چہرے کے تاثرات درست کیے۔ اس گھر کے اصولوں کے عین مطابق مرد و خواتین کا الگ الگ انتظام کیا گیا تھا۔ چلیں پھپھو لیڈیز کی سائڈ پر ہیں، آپ یہاں آ جائیں۔ وہ سب بڑوں کو فی الحال مصروف دیکھ وہیں کھونے میں جا کھڑا ہو گیا تھا۔ فرحان کے چہرے کی چمک ہی نرالی تھی، اس کی باقاعدہ صحرا بندی ہوئی تھی، اور اب نکاح پڑھایا جانا تھا۔ سفید شلوار سوٹ پر کوٹ پہنے وہ الگ ہی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ نکاح شروع کیا جائے۔ اجازت ہے، اجازت ہے۔ اجازت طلب کی گئی اور ہادی کو سانس گھٹتا محسوس ہوا۔ پہلے لڑکی کی رضامندی لی گئی تھی، اور پھر فرحان کی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کے نام سے منسوب کر دی گئی تھی۔ مبارک ہو وجدان میاں، بیٹی کی ذمہ داری سے بھی سپردوش ہو گئے۔ عباسی صاحب نے آگے بڑھ کر پہلے بیٹے کو اور پھر دولہا بنے پوتے کو سینے سے لگایا۔ سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، جبکہ دوسری جانب ہادی خود کو مرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ہادی میرے شیر، یہاں آؤ یار، غیروں کی طرح وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آ کر بھائی کے سینے سے لگو۔ انہوں نے لاڈلے نواسے کو دیکھ پرمسرت لہجے میں کہا تو وہ چاروں ناچار مسکراتا ان کی جانب بڑھا۔ نکاح بہت بہت مبارک ہو فرحان۔ اس کے بغل گیر ہوتا وہ بوجھل دل سے بولا، خیر مبارک، مجھے تمہاری محبت ہاتھ سے نکل جانے کا دکھ ہے، اور یہ دکھ ہمیشہ رہے گا ڈیئر برادر۔ میں نے کہا تھا نا، جو چیز مجھے پسند آ جائے پھر وہ میری ہو جاتی ہے۔ وہ مسرور لہجے میں دھیرے سے اس کے کان میں گنگنایا تھا، جبکہ وہ ضبط سے آنکھیں میچ کر دور ہوا تھا۔ ارے ہادی بیٹا، تم کب آئے؟ مجھے تو لگا ایمرجنسی کی وجہ سے تم آج نہیں آؤ گے۔ اپنی ماں سے مل لو، کافی بار تمہارا پوچھ چکی ہیں۔ اس کے والد صاحب ہادی سے بغل گیر ہوتے مسکرا کر بولے، اپنے بیٹے کی دلی کیفیت سے نا واقف تھے۔ اگر انہیں ذرا سا بھی علم ہوتا تو وہ اس محفل کا حصہ نہ بنتے۔ دوسری جانب دلہن بنی بیٹھی حیا اپنی ماں، تائی، دادی سب سے دعائیں لے رہی تھی، مگر اس کا دل مردہ ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس نکاح کے لیے انکار نہیں کر سکی تھی۔ نکاح مبارک ہو میری بچی، اللہ نصیب بلند کرے، آمین۔ وہ اس وقت کسی ذہنی اذیت سے دوچار تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی، مگر اس کا دکھ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔
घर में पूरा खानदान जमा था। सब एक-एक करके इसे मुबारकबाद दे रहे थे, इसे सराहा रहे थे। कोई इसकी खुशबख्ती पर नाज़ कर रहा था, मगर वो किसी ज़िंदा लाश की मानंद खामोश हो गई थी, जैसे सारे अल्फाज़ ही दम तोड़ गए हों। मम्मा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वो बहाना बनाकर उठ गई थी। हाँ, बच्ची को कमरे में ले जाओ। ये वक़्त ही ऐसा होता है। हर लड़की का दिल ही डरा रहता है। भले इसने रुखसत होकर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, मगर लड़की तो लड़की होती है ना। ये इसकी दादी बेगम थी, जबकि वो मज़ीद कुछ भी बर्दाश्त करने की पोज़ीशन में नहीं थी। इसीलिए भागती हुई वहाँ से निकल आई थी। निकाह हुए 1 हफ़्ता हो गया था और निकाह के फ़ौरन बाद बिज़नेस ट्रिप पर चला गया था। वो मामूल के मुताबिक यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर नीचे आई थी, जहाँ हादी शायद अस्पताल जाने से पहले फुप्पो को यहाँ छोड़ने आया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। इसने धीरे से सलाम किया, मगर हादी एक नज़र उठाकर इसे देखना भी गवारा नहीं किया था। वो अपनी मोहब्बत से इसी रोज़ दस्तबरदार हो गया था, जिस दिन इसका निकाह किसी और से पढ़ाया गया था। वालेकुम अस्सलाम। दुल्हन बेगम, आप तो बिल्कुल ईद का चाँद हो गई हैं। अभी तो रुखसती नहीं हुई और हमसे ऐसी पर्देदारी। घर के मर्द नाश्ते के बाद ऑफिस के लिए निकल गए थे, जबकि वो ख़वातीन के सामने ही अपने फुप्पो के तबसरे पर अच्छा ख़ासा शर्मिंदा हुई थी। ऐसी कोई बात नहीं है फुप्पो, वो लाड से इनके गले लगती ज़रा हल्के से मुनमुनाई थी। मम्मा, मैं चलता हूँ। वो फौरी उठ खड़ा हुआ था। हाँ अच्छा बेटा, ये ज़रा हया को यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देना। इस वक्त कोई भी गाड़ी घर में नहीं है। ताई बेगम इन दोनों को ही अच्छी खासी मुश्किल में डाल गई थी। ओके, आ जाओ हया। वो धीरे से बोलता वहां से निकल आया था, जबकि वो भी धीमे धीमे कदम उठाती इसकी पैरवी में बढ़ रही थी, जो नाक की सीध में बस चलता ही चला जा रहा था और सीधा गाड़ी में जाकर बैठ गया था। गाड़ी हवा की रफ्तार से बातें कर रही थी, वो बिल्कुल खामोश था। बोलने की जुर्रत तो हया की भी नहीं हुई थी। नाराज हो? बिला आखिर वो हिम्मत मुजतमा कर बोल उठी थी। नाराज अपनों से हुआ जाता है, और मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, मिसेस फारहान अब्बासी। हया को ये तारुफ बुरी तरह चुभा था। मैं दादा अब्बू के सामने इनकार नहीं कर सकी, और न तुमने रिश्ता मांगा। इसने शिकवा किया। तुम्हारा शौहर बहुत काइया इंसान है, इसे पहले ही खबर हो गई थी, और वह नाना अब्बू को अपने लिए मना चुका था। अब भले मैं सवाली बनकर आता या दुनिया का कोई भी शख्स, नाना अब्बू पोते के सामने किसी को नहीं गर्दानते। वो अज़ियत से बोला। वो बिन बाप का बेटा था। सारी उम्र ननिहाल में रहे थे। अपनी तालीम मुकम्मल होने के बाद वो अपनी माँ को अलग घर में ले गया था, क्योंकि इसकी खुददारी मज़ीद इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती थी। मगर बचपन से अब तक फ़रहान की वजह से इसे बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ी थी, और अब मोहब्बत भी कुर्बान कर बैठा था। क्योंकि वो खुददार माँ-बाप की औलाद था, वो एहसान फरामोश नहीं बन सकता था। 1 महीना पर लगाकर उठ गया था। फरहान की वापसी के 1 हफ्ते बाद रुखसती तय पाई थी। इत्तेफ़ाक की बात थी कि घर के सारे लोग ही शादी पर दूसरे शहर गए हुए थे। पीर की वापसी रात देर से मुतवक्के थी। हया बीमारी का बहाना बनाकर घर ही ठहर गई थी। कुछ वाक़ई इसकी तबीयत नासाज चल रही थी। मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको हादी को परेशान करने की क्या ज़रूरत थी? वो मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ बेज़ार सी बोल रही थी। तभी से हादी मेंशन में दाखिल होता दिखाई दिया। हया, मामी बता रही कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तुमने मेडिसिन ली थी? वो लाउंज में बैठे थे, एक मुतफक्कर लहजे में गोया हुआ। हादी आया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। वो राबता मुनक़ता कर गई। तुम्हें मालूम है ना, फरहान को मेरा तुमसे बात करना पसंद नहीं है। तुम मामा को मना भी तो कर सकते थे। वो शदीद बेजार लहजे में बोल रही थी। सफ़ेद कोट में मलबूस वो शायद सीधा अस्पताल से यहीं आ रहा था। फरहान इस वक्त घर भी नहीं है। दूसरी बात, मुझे सिर्फ तुम अपना डॉक्टर समझो, और मेरा कोई मरीज़ बीमार हो तो इसकी फ़ौरी ट्रीटमेंट देना मेरी ज़िम्मेदारी है। अब वो तेज़-तेज़ साँसें लेने लगी थी। हया, तुमने मेडिसिन नहीं ली ना? वो बचपन से साँस का प्रॉब्लम था, मगर मौसम का असर था और कुछ इस रिश्ते की टेंशन के इसे पैनिक अटैक हुआ था। तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है? हया ने हाथ के इशारे से बताया तो वो फ़ौरन इसके कमरे की जानिब बढ़ा। इसे इल्म नहीं था कि इसकी इतनी तबीयत ख़राब थी। मामी ने तो कहा था कि बस ज़रा चेकअप कर ले कि वो ठीक है, मगर इसका साँस फूलता देख वो परेशान हुआ था। और इतने में वापस आया कि हया का साँस बिल्कुल थम चुका था, और वो आँखें मींचे बेहिस्सो हरकत सोफ़े पे नीचे गिरी पड़ी थी। हया, वो डॉक्टर होकर इसकी हालत देख हवास बाख्ता हुआ। इसका साँस रोकना, इसकी साँस रुक गया था। इसे कभी इस नौइयत का रिस्पायरेटरी अटैक कभी नहीं हुआ था।
हया आँखें खोलो प्लीज़, क्या हुआ तुम्हें? ओपन योर आइज़। वो होशो-खरोश से बेगाना थी, इसकी साँस बिल्कुल थम चुका था। अपने दोनों हाथों का दबाव महसूस दुरुस्त अंदाज में सीने पर डालता वो इसकी सांस बहाल करने की कोशिश कर रहा था, जो बिल्कुल थम चुका था। जब यकायक एक फैसला लेता, वो थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरे पर झुका था। इसे फौरी मसनूई सांस की जरूरत थी, वरना जान का खतरा लाहक था और वो ट्रेंड था। ये अमल 1 मिनट में 2 बार किया जा सकता है। इसे सीपीआर देता वो हर चीज को फरामोश कर चुका था। जब भी किसी ने हया पर झुके हाथी को गिरेबान से पकड़ दूर किया था। पीछे हटो बेगैरत इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मनकूहा के साथ ये घटिया हरकत करने की? वो चिल्लाया, जबकि वो भौंकला गया था। बहैसियत डॉक्टर वो तो सिर्फ जान बचा रहा था। फ़रहान, हया, इसे इसकी तवज्जो हया की जानिब करवाई, जिसको अब धीमा-धीमा साथ चलने लगा था, जबकि वो गुस्से से पागल हादी को थप्पड़ लगा रहा था। वो अपनी माँ की ज़बानी सारी बात जानकर हया को सरप्राइज़ करने दुबई से कल के बजाय अभी की फ्लाइट लेकर आया था कि वहाँ का मंज़र देख इसका खून खौल गया था। खामोश, मर जाने दो ऐसी बेगैरत लड़की को। घर वालों की गैर मौजूदगी में पता नहीं कौन कौन से गिल खिलाएगी तुम लोगों ने। इसने एक और मुक्का मारना चाहा, जब हादी हया की हालत के पेश नज़र इसे मुक्का मारता पीछे को धकेल कर गोद में उठाता बाहर की जानिब भागा था। जबकि फ़रहान पहले हैरानी से इसकी जुर्रत देखता रहा और फिर खुद भी इसके पीछे गया था, जो इसकी नाक के नीचे से इसकी बीवी को उठा कर ले गया था। हादी रुक जाओ, इसने रोकना चाहा, मगर वो धड़कते दिल के साथ कार भगा ले गया था। यूब गुस्से में मुलाहज़ात बकता वो भी गाड़ी में बैठता इसके पीछे गया था। हादी रिलैक्स यार, डॉक्टर होकर इतना पैनिक कर रहे हो। तुम्हारी कज़न अब बिल्कुल ठीक है, इन्हें पैनिक अटैक हुआ था। सब कुछ क्लियर हो गया है, बस अब नोबिलाइज किया जा रहा है। तुमने इस वक्त सीपीआर दे दी, वरना मरीज की जान को खतरा था। अब रिलैक्स रहो। वो मुस्कुरा भी ना सका क्योंकि एक कयामत तो अभी मुंतजिर थी। यार इस्माइल, कम ऑन, तुम तो बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़कर बैठ गए हो। ये डॉक्टर जवेरिया थी जिससे इसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। आपके दोस्त के मुस्कुराने के दिन अब गए क्योंकि मैं इन पर पर्चा कटवाऊंगा। इसने मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। हादी ने जब से आंखें मीच ली थी। वेट अ मिनट, हमें पता है इस तरह की सिचुएशंस में हमारे यहाँ बहुत ओवर रिएक्ट किया जाता है, मगर डॉक्टर हादी ने आपकी वाइफ की सीपीआर सिर्फ पेशेंट समझ कर दिया। और प्लीज़ कोई फजूल बहस ना कीजिएगा। एक इंसानी जान बहुत कीमती होती है, यहाँ जेंडर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती और सीपीआर हर कोई दे सकता है। सिर्फ ट्रेंड बंदा ही दे सकता है, वरना उल्टा मरीज की जान को खतरा हो सकता है। आप तो पढ़े लिखे हैं, प्लीज़ चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। जवेरिया एक लम्हे में सारी सूरत हाल भाप गई थी कि इस तरह की सिचुएशन में हमारे माशरे में किस तरह रिएक्ट किया जाता है। ये नामहरम है बीवी, वो मेरी बीवी है। मर रही थी तो मर जाने देता। इसकी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? वो अपनी जगह पर अटल था। चुप हो जाओ फ़रहान, जाहिलों वाली बातें मत करो। हादी ने दाँत किचकिचाए, वो इस अस्पताल में अपनी रेपुटेशन बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता था। तुम्हें और अंदर मर रही इस बेगैरत लड़की को तो मैं अच्छे से बताऊंगा, कैसे तुम दोनों हमारी गैर मौजूदगी में बेहयाई कर रहे थे। ऐसा क्या हो गया था जो इसकी सांसें रुकने लगी? यकीनन तुम दोनों पहले ही कुछ उल्टा सीधा कर रहे थे और मुझे देखकर ड्रामे कर रहे हो। जवेरिया इसे शर्मिंदा होता देख वहां से चली गई थी, अलबत्ता हादी क्लब बीच कर बिल्कुल खामोश खड़ा था। इसे इस लड़की की फिक्र थी जिसकी सांसें उखड़ रही थी। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। सब घर वाले इमरजेंसी में वापस आए थे और सीधा अस्पताल पहुंचे थे। फरहान बाहर गार्डन में था और वो वहीं अपनी औकात के मुताबिक सब घर वालों को हकीकत बयान कर चुका था, जबकि बाकी सब सीधा ऊपर आए थे। नाना जान को देख हादी सीधा हुआ। नाना अबू हया चटाक, इससे कबल के इसके अल्फाज मुकम्मल होते इनका हाथ उठा था और इसका चेहरा सुर्ख कर गया। कॉरिडोर सन्नाटे में डूबा हुआ था। हादी की वजह से किसी ने इन्हें नहीं रोका था। बेगैरत, बेशरम, शर्म नहीं आई अपने भाई की इज्जत पर हाथ डालते हुए? हया की वालदा चेहरे पर दुपट्टा रखे सिसक रही थी। नाना अबू, सीपीआर दिया है हया को, इसका सांस अटक रहा था। मर जाती वो, इसकी जान बचाई है। अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया है मैंने सिर्फ। इस बार वो दर्द की शिद्दत से बुलंद आवाज में बोला था और ऐसा पहली बार हुआ था। हादी, इसकी माँ ने आगे बढ़कर बेटे को मुंह पर पे दर पे थप्पड़ लगाए थे। मर जाने देते। किसी गैर महरम को छूने से बेहतर है कि एक पाक बाज औरत मर जाए, अपनी हया और गैरत के साथ। हादी अब कुछ नहीं बोला था।
वो कुछ बोल ही नहीं सकता था। भला वो क्या अपना दिफ़ा करता, क्या सफाई पेश करता, मगर वो अपनी आँखों के सामने हया को मरता नहीं देख सकता था। हया की जान बचाना अगर मेरा गुनाह है, तो मैं बाख़ुशी इस गुनाह को तस्लीम करता हूँ। आप जो सज़ा देना चाहें मुझे कबूल है। वह सर झुका गया था, जबकि घर के सब बड़े लानत मलामत कर रहे थे और हादी अफ़सोस और शर्मिंदगी से ज़मीन में धँसता जा रहा था। किसी ने भी अभी तक इस लड़की की खैरियत मालूम करने की कोशिश नहीं की थी, जो अंदर धीमी साँसें ले रही थी। शायद हमारे माशरे की सोच ही ऐसी थी। इसे नहीं मालूम था कि इसने एक गैर महरम को हाथ लगाकर गुनाह किया था। यह इंसानियत बचाकर नेक अमल, मगर बस इसने एक जान बचाई थी और क्योंकि कीमत सिर्फ इंसानी जान की है, बाकी सब बेमायने हैं। बतौर मुसलमान हम पर इसकी अहमियत और ज़्यादा वाज़ेह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसने किसी एक शख्स की जान बचाई, इसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। ख़वातीन के लिए नामहरम के सामने इलाज की गर्ज से मुतासरा बदन खोलने की ज़रूरत की बुनियाद पर ज़रूरत ही के बक़दर गुंजाइश है, लेकिन जब इसी फ़ील्ड की डॉक्टर औरत मौजूद हो तो नामहरम मर्द डॉक्टर के सामने बदन खोलना, ऑपरेशन कराना और डॉक्टर के लिए करना दोनों जायज़ नहीं। मर्द डॉक्टर को चाहिए कि वो किसी औरत डॉक्टर की जानिब रहनुमाई कर दे और अगर कोई औरत इस फ़ील्ड को ना मिले, तो वो इलाज मर्द डॉक्टर से कराना भी जायज़ है। जब इस मकसद के लिए ख़वातीन मौजूद हों, तो मर्दों को इस फ़ील्ड की तालीम की हाजत नहीं। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनोरी टाउन। इस फ़तवे से वाज़ेह है कि ज़रूरत के तहत इंसानी जान बचाने के लिए महरम और गैर महरम के फ़र्क को भुलाकर सिर्फ़ इंसानियत को अव्वल रखना जायज़ है। यानी अगर हालात ऐसे बन जाएँ कि किसी गैर महरम लड़की को सीपीआर देना पड़ जाए और कोई औरत मौजूद ना हो, तो इसे ऐसे में इंसानी जान बचाने के लिए ये अमल करना जायज़ होगा। लेकिन इसकी ट्रेनिंग होती है। बगैर ट्रेनिंग के सीपीआर देने से गुरेज़ करें। इस तरह जान को खतरा है। सुबह का सूरज तुलू होते ही खुद में बहुत सी आजमाइशें लेकर आया था। हया की आंख खुली तो घर का हर फर्द को अपने इर्द गिर्द मौजूद पाया। वो जरा हैरानी से सबको देख रही थी, क्योंकि सबके चेहरे के तासुरात इंतहा के सख्त थे। हया ने नजर घुमाकर बाकी सबको देखना चाहा, मगर वो नासमझी से फिर माँ को देखने लगी, जो मलामती निगाहों से इसे ही देख रही थी। आप लोग प्लीज बाहर जाएं, पेशेंट को तंग ना करें। जब हादी वहां आता प्रोफेशनल अंदाज में बोला था, तुम चुप रहो लड़के, वो मेरे शेर से लड़का हो गया था। इस दुख से नाना को देखा। मामा क्या हो गया है? वो नकाहत ज़दा लहजे में बोली। प्लीज़ बाहर जाएं, कुछ देर में छुट्टी हो जाएगी। बाकी बातें घर जाकर कर लीजिएगा। और ये बात मैं बतौर डॉक्टर कह रहा हूँ, तो प्लीज़। वो इल्तिजाइया गोया हुआ तो सब तनफ्फर से इसे देख वहाँ से निकल आए थे, जबकि हया परेशान सी थी। क्या हुआ है आदि? सब नाराज़ क्यों लग रहे हैं? वो परेशान हुई। कुछ नहीं हुआ यार, बस घर वालों का दिमाग चल गया है और कुछ नहीं। तुम रिलैक्स करो। ये बताओ, भूख तो नहीं लग रही? इसने इसका दिमाग सब सोचों से हटाना चाहा। नहीं, प्यास लग रही है। वो इस्बात में सर हिलाकर इसको पानी पिलाने लगा। हया मुकम्मल सेहतियाब होकर घर आ चुकी थी, जबकि वो अब तक चीज़ें समझने में कोशा थी, क्योंकि सब इससे खिंचे-खिंचे से थे। बाबा, आप मुझसे नाराज़ हैं? इसने अपने बाप का हाथ पकड़ा, जो इसके करीब बेड पर बैठे थे। तुम दोनों के दरमियान कब से ताल्लुकात हैं? हयान ने नासमझी से देखा। कौन से ताल्लुकात? किसके दरमियान? वो हवन्नक हुई। तुम्हारे और इस बेगैरत हादी के दरमियान। कब से आंखों में धूल झोंक रहे हो हमारी? वो सख्ती से गुर्राए, जबकि हया तो आवाज़ बाँखता रह गई थी। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? इसका सांस सीने में अटका था। बग़ैरत, बेहया, शुक्र करो तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में दफ़न नहीं कर दिया मैंने, वरना वो बेइज़्ज़ती अपनी आँखों से देखने के बाद कोई भी गैरतमंद मर्द तुम जैसी औरत को बर्दाश्त ना करे। फ़रहान गुर्राया तो इसने हैरत से इसे देखा। फ़रहान, बस दादा अब्बू, मैं इस लड़की को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं फ़रहान मजीद अब्बासी अपने पूरे होशो-हवास में तुम्हें 3 तलाक देता हूँ। 3 लफ्ज़ों में इस नाज़ुक से रिश्ते को ख़त्म करके वो कुछ भी कहे सुने बगैर वहाँ से निकलता चला गया था, जबकि हया पर सकता तारी हो गया था। ताया-ताया, ताया-ताई, दादा, चच्चा-चच्ची सब इसे तनफ़्फ़ुर भरी नज़रों से देखते कमरे से निकल गए थे।
जबकि इसकी माँ मुंह पर दुपट्टा रखे मुसलसल सिसक रही थी। हाया तुमने मुझे बाबा जान के सामने शर्मिंदा करके रख दिया है। वरदान साहब झुके कंधों से बोले थे। कॉल मिलाओ इस बदबख्त को और शर्मीन को भी कि काल मिलाओ अपने नालायक बेटे को। रिश्ता जल्द से जल्द लेकर आए, हम इसे मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो दुख से बोल रहे थे जबकि हैरान और परेशान सी सबका रवैया देख रही थी कि जब इसके बाप के जाते ही रो रो कर इसकी माँ ने हादी का कारनामा बताया था और वो हैरत ज़दा रह गई थी। क्या वो मोहब्बत और फरहान से इंतकाम में इतना अंधा हो गया था कि वो इसकी ही ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था? मम्मा कह रही है झूठ है। हादी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था। हादी ऐसा कर चुका है बेटा। हादी का नाम भी मत लो। इन्होंने बेटी को गुरका। फरहान ने मेरे साथ जुल्म किया है मम्मी। अगर हादी ने मेरी तबीयत खराबी का फ़ायदा उठाया भी था तो इस सब में मेरी क्या गलती है? वो चिंगाड़ी थी जबकि उन्होंने बेटी का मुंह दबा दिया था। इस बगावत की आवाज़ें कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए थी। इस वाक़ये को 1 माह गुज़र चुका था। हया की तबीयत अब पहले से बेहतर हो गई थी, जबकि तबीयत के पेश नज़र फ़िलहाल सभी खामोशी इख्तियार कर गए थे। फ़रहान तलाक के फ़ौरन बाद घर छोड़ गया था, वो अब तक नहीं लौटा था। इसने यही शर्त रखी थी कि जल्द से जल्द हया को इस घर से निकाल दिया जाए, वो जब ही वापस आएगा। ऐसी सूरत-ए-हाल में सभी बड़े परेशान थे क्योंकि हया की तबीयत आए दिन खराब हो रही थी। ऐसे में वजदान साहब ने ना चाहते हुए भी बेटी की हिमायत की थी। वो एक कमरे में बंद होकर रह गई थी। मम्मा मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी फैमिली के लोग इतनी दकियानूसी सोच के हामिल होंगे। मुझे यकीन ही नहीं आता। वो हद दर्जा रंज में मुब्तला था, दोनों हाथों से सर थामे बैठ शदीद कब्र से दो चार था। मैं तो बाबा जान का लहज़ा सुनकर परेशान हो गई हूँ। हादी इनके लहज़े में तुम्हारे लिए नफ़रत बोल रही थी। फरहान ने हया को तलाक दे दी है। हादी ने हैरत से झुका हुआ सर उठाकर देखा। मम्मा ये इस कदर घटिया कैसे हो सकता है? मुझसे कसम ले लें, मैंने सिर्फ हया को सीपीआर दिया था और मरीज का इलाज औरत मर्द देखकर नहीं किया जा सकता। सब इंसानी जान बचाई जाती है। वो अपनी माँ को सफाई दे रहा था। तुम परेशान ना हो, मैं जानती हूँ मेरी जान। इन्होंने बेटे के बालों में हाथ फेरा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं हया से कैसे नजरें मिलाऊंगा। पता नहीं सबने इसे मेरे खिलाफ क्या कुछ कहा होगा। वो सोच सोच कर पागल हो रहा था। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी माँ बेवा ज़रूर है मगर इतनी कमज़ोर नहीं कि अपनी औलाद का दिफ़ा ना कर सके। वो सोच चुकी थी इन्होंने क्या करना था। हादी अपनी अचानक कोर्स की डेट आने की वजह से बाहर चला गया था। अलबत्ता शर्मीन हादी की मर्ज़ी के मुताबिक हया का रिश्ता माँग चुकी थी। वो निकाह करना चाहते थे मगर हया की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं थी। यही वजह थी कि सब बड़े खामोश हो गए थे। आज वो 3 माह का कोर्स मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान आ गया था मगर इस तमाम अरसे में हया ना रही थी। बाबा जान और आप और आपका लाडला पोता मेरे बेटे और भतीजी का जितना तमाशा लगा चुके हैं, इसके बाद तो मेरा इस घर में किसी की शक्ल देखने का भी दिल नहीं चाह रहा। मगर इस वक्त आना बेहद ज़रूरी था। मुझे भाभी की कॉल मौसूल हुई थी। आपके हुक्म का पता चला। अगर आप ना भी कहते तो भी मैं अपनी भतीजी को यूँ बेआसरा कभी ना करती। कम से कम आप जैसे मर्दों के हाथों रुलने तो कभी ना देती। इसीलिए मैंने फैसला किया है, हया और हादी का निकाह कर दिया जाए, अभी और इसी वक्त। मुझे रुखसती भी चाहिए। वो अटल लहजे में बोल रही थी। तुम ना भी कहती तो हम अभी और इसी वक्त इस बदबख्त और बेहया लड़की की रुखसती कर देते। बुलवा लो अपने बेटे को। वजदान मौलवी साहब को इंतजाम करो। निकाह अभी और इसी वक्त होगा। वो फैसला कुन लहजे में बोल रहे थे जबकि शर्मीन ने ताज्जुब से अपने बाप को देखा था। आज इन्हें इस सब के पढ़ा लिखा होने पर ताज्जुब हुआ था। हया वजदान अब्बासी वल वजदान अब्बासी आपका निकाह हादी हयात वल हयात हाशमी के साथ बाइवज़ 10 लाख हक महर सिक्का राजुल वक्त दो गवाहान की मौजूदगी में होना करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? हया की आंखों से आंसू झरने की मानिंद पेश बह रहे थे। बेशक इसने हादी हयात के सपने देखे थे मगर इस तरह कभी नहीं। कबूल है। माँ के हाथ का दबाव अपने कंधे पर महसूस हुआ तो वो सफाकियत से कबूल है बोल गई थी। जबकि इसका सगा बाप इसके साथ नहीं था तो वो सबसे क्या गिला शिकवा करती। हादी हयात वल्द हयात हाशमी आपका निकाह हया वजदान अब्बासी वल वजदान अब्बासी के साथ बाएवज 10 लाख हक महर सिक्का राजुल वक्त होना करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? हादी ने बड़ी दिक्कत से मौलवी साहब के अल्फाज खुद में उतारे थे। ये निकाह इन हालात में हो ऐसा तो इसने कभी नहीं चाहा था मगर हया की रजामंदी के बाद इसके पास किसी किस्म की गुंजाइश नहीं थी।
कबूल है। 3 बार इसे अपनी ज़ौजियत में कबूल करता, वो कहीं न कहीं खुद को इसका मुजरिम समझ रहा था। निकाह हुए 15 मिनट ही गुज़रे थे कि हया का सारा सामान एक सूटकेस में पैक करके हादी की गाड़ी में रखवा दिया गया था। जबकि वजदान साहब एक कोने में मौलवी साहब के साथ बैठे किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू शनीद में मसरूफ़ थे। मौलवी साहब, मेरी बेटी का 4 माह कबल मेरे बड़े भाई के बेटे से निकाह हुआ था, मगर कुछ वजूहात की बिना पर ये रिश्ता नहीं चल सका और रुखसती से पहले ही तलाक हो गई थी। तो बेटी पर इद्दत तो नहीं होगी? ये मेरे भांजे के साथ दूसरा निकाह जायज़ तो है ना? पहले तो टेंशन में इन्हें इस बात का ख़्याल ही नहीं रहा था, मगर निकाह होते ही गोया इन्हें एक नई फ़िक्र सताने लगी थी। देखें, अगर बच्ची की तलाक रुखसती से कब्ल यानी साबका शौहर से तन्हाई में मुलाकात के कब्ल ही हो गई है, तो इद्दत वाजिब नहीं हुई और अब ये निकाह बिल्कुल जायज़ है और अगर वो दोनों तन्हाई में मिल चुके हैं, तो इद्दत की मुद्दत मुकम्मल करना ज़रूरी है। इन्होंने नाप-तोल कर कहा था। नहीं, नहीं, निकाह के अगले रोज़ ही भतीजा दुबई चला गया था और जिस दिन वापस आया वो अस्पताल में थी। बस जैसे ही घर आई इसने तलाक दे दी। दोनों की तन्हाई में कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कुछ देर कब्ल ही हया की माँ से कहकर हया से एक बार कन्फर्म करना ज़रूरी समझा था, क्योंकि वो दोनों एक ही घर में रहते थे, तो कुछ भी मुमकिन था। अगर दोनों की तन्हाई में मुलाकात नहीं हुई, तो इद्दत हरगिज़ लाज़मी नहीं है और ये निकाह बिल्कुल जायज़ है। इस बार इन्होंने सुख का साँस लिया था। वो रुखसत होकर वो रुखसत होकर हादी हयात के घर आ गई थी। शर्मीन ने इसे हादी के कमरे में ठहराया था। हालांकि हादी ने कहा भी था कि अगर वो किसी दूसरे रूम में रहना चाहे तो इसे प्रेशराइज ना किया जाए, मगर शर्मीन ने सख्ती से मना कर दिया था। रुखसती हो गई थी, अब इन दोनों को इस रिश्ते को निभाना था। वो सफ़ेद रंग जोड़े में मलबूस मुरझाई सी बेड पर नीम दराज आंखें मूंदे लेटी हुई थी। जब ही दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देता हादी रूम में दाखिल हुआ था, इसके वजूद में जरा जंबिश नहीं हुई थी। हादी ने बगौर इसका कमलाया हुआ चेहरा देखा था। वो आज इसे पूरे 4 माह बाद देख रहा था, तो इस हया से यकसर मुख्तलिफ थी। कैसी हो हया? वो करीब ही बैठता नर्म लहजे में इस्तफसारिया गोया हुआ। हया ने एकदम आंखें खोल के इसकी जानिब देखा, जो सफ़ेद सूट में इतना ही हैंडसम लग रहा था जितना इसने कभी सोचा था। तुम्हारी मेहरबानी के बाद कैसी हो सकती हूँ? वो तल्ख़ लहजे में गुर्राई और रुख फेर लिया। वो गज़ाली आँखें नमकीन पानियों से भर गई थीं। किताबी चेहरा पीला हो रहा था। बाल बिल्कुल रफ से हो चुके थे। वो चंदन सा रूप कहीं खो-सा गया था। कम से कम तुम तो मेरी पोज़ीशन समझो हया। मैं सिर्फ़ तुम्हें सीपीआर इसमें सफाई देनी चाहिए। इस सब रुसवाई से बेहतर तो तुम मुझे मरने देते। वो तल्ख़ी से मुस्कुराई थी। हादी ने दुख से देखते इसका हाथ पकड़ना चाहा, जो झटके से पीछे कर गई थी। छोड़ो मेरा हाथ, खबरदार जो हाथ भी लगाया तो। वो सख्ती से गुर्राई थी। हया, तुम्हें इस रिश्ते को समझने के लिए जितना वक़्त चाहिए ले लो, मगर मैं तुम्हारी बदतमीज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस बार वो तंबी लहजे में गोया हुआ था। तो ना करो, मगर मुझसे किसी किस्म की नरमी की उम्मीद हरगिज़ नहीं रखना। वो सख्ती से बोलती चेहरा फेर गई। वो कितनी ही देर इसे देखता रहा, मगर हौले से मुस्कुरा के थोड़ा नज़दीक होता, इंतहाई गैर मुतवक्का हरकत करता इसके माथे पर रब रख गया। निकाह मुबारक हो मिसेस। हया ने हौनकों की तरह चौंक कर देखा था। ना सिर्फ देखा था, बल्कि साथ ही हादी को पीछे धक्का देना चाहा, जो दोनों हाथ अपने हाथ में थामता अब इसके रुखसार पर अपना लम्स छोड़ता इसे भौंकला कर रख गया था। हादी, वो गुर्राई तो वो हौले से मुस्कुराता हुआ पीछे हो गया। जो हुआ इसे भयानक ख्वाब समझकर भूल जाओ और इतना जान लो कि तुम्हारी तरफ गंदी निगाह से देखना तो दूर, अगर मैंने कभी ऐसा सोचा भी हो तो मुझे अभी मौत आ जाए। इसके लफ्ज़ों की सख्ती पर हया का दिल मुट्ठी में आया था। मेरा मकसद गलत नहीं था, मगर तुम जब तक चाहो मुझे सज़ा दे सकती हो। मैं तुम्हारी हर सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, इस शर्त पर कि तुम मुझे जल्द माफ़ कर दोगी। वो अब भी मुस्कुरा कर देख रहा था, जबकि वो फपक-फपक कर रोती आगे बढ़कर इसके सीने से लगी थी। कई माह का गुबार था जो किसी हमदर्द के कंधे पर रखकर निकलना था। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हारी वजह से मेरे बाबा ने मुझे अजीब नज़रों से देखा। सबने मुझ पर तोहमत लगाई, मेरा किरदार गंदा किया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। हादी, वो एक हाथ से इसे अपने हिसार में लिए इसके शिकवे सुन रहा था और सब कुछ याद कर आंखें सुर्ख पड़ गई थी।
तुम्हारे साथ हुई एक-एक ज़्यादती का जवाब देना होगा अब्बासी हाउस के मकीनों को, मगर प्लीज़ अभी के लिए खामोश हो जाओ। इसके बालों में हाथ चलाता वो इसे रिलैक्स कर रहा था, जो कुछ देर बाद खुद ही हिचकिचा कर पीछे हुई थी। नाराज़गी खत्म समझो, इसने इस बार शरारत से कहा तो वो घूरती हुई साइड से कंबल लेती सर तक तान गई थी। अच्छा चलो तुम नाराज़गी दिखा लो, मैं जल्द तुम्हें मना लूँगा। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोलता ड्रेसिंग रूम में जाकर बंद हो गया था, जबकि वो अब आंसू बहाती अपने माँ बाप का रवैया सोच रही थी। वो हादी की नीयत से बहुत अच्छे से वाकिफ थी, मगर वो इससे इतनी जल्दी माफ करने का इरादा नहीं रखती थी। हाया यार उठ भी जाओ, वो इसके सरहाने खड़ा था जो शादी के अगले रोज ही गधे घोड़े बेच कर सो रही थी। हया मेरी जान उठ जाओ। इस बार इसने नरमी से इसके बालों में हाथ चलाए थे। जभी वो झटके से उठती इसे पीछे धकेल चुकी थी। मुझसे फासले पर रहो। वो गुर्राई तो वो हवा में हाथ बुलंद करता सरेंडर कर गया, जबकि वो नागवारी से देखती अपना लिबास दुरुस्त करती वॉशरूम में जाकर बंद हो गई थी। लगता है सबको अपना गुस्सा उतारने के लिए एक मैं ही पंचिंग मशीन मिल जाता हूँ। इसने मुंह बसूर कर सोचते सर झटका, खैर मुझे क्या। वो कंधे उचका गया, जबकि अब वो खुद भी अस्पताल जाने के लिए रेडी हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वो नाश्ते की मेज़ पर आई जहाँ शर्मीन ने मुस्कुराकर इसका इस्तकबाल किया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मेरे बच्चे? और ये क्या शादी की अगली सुबह इतनी सोनी-सोनी सी दुल्हन? कोई शौक रंगना पहनना था ना मेरा बच्चा? वो समझाने वाले लहजे में गोया हुई थी जबकि वो सर झुका गई थी। आदि ने इसके लिए कुर्सी घसीटते फौरन इसकी साइड ली थी। वो मामा मैंने तो कहा था इसे ये ड्रेस पहनने के लिए। मुझे सिंपल और डिसेंट लड़कियां ही पसंद है। और सॉरी अब सिर्फ मैं अपनी बीवी की बात करूंगा। वो खुद ही शरीर लहजे में बोलता बात का मजे का रंग दे गया था। हया इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनना। ये सन 60 के ज़माने की रूह है। खूब शौक रंग पहनो, तैयार हो, सजो संवरो और जो सब कुछ पहले हुआ इसे बुरी याद समझकर भूल जाओ। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। हया का एकदम रोना आया था। वो कुर्सी छोड़कर खड़ी होती इनके सीने से लगी। पुप्पो मामा बाबा को आज तो मुझसे मिलने आना चाहिए था ना। वो नहीं आए, मेरा कसूर क्या है? अगर हाथी ने मेरी जान बचाई तो इस सब में मैं गलत कहाँ थी? इसका ज़ब्त टूट गया। गलत तो कुछ भी नहीं मेरे बेटे, बड़ों का दिमाग खराब है और कुछ नहीं, तुम खामोश हो जाओ। आदि ने इसकी आंखों में आंसू देख बड़ी दिक्कत से पहलू बदला था। खैर बैठो नाश्ता करो मेरी जान। वो इसका सर थपक कर सरबराही कुर्सी पर बैठ गई थी, जबकि हादी की निगाहों में बस इसका रोया रोया सा चेहरा घूम रहा था। हादी तुमने क्या सोचा? मेरी बहू को हनीमून पर कहाँ ले जा रहे हो? इस बार पूरी तरह से गड़बड़ाई थी। जहाँ मलिका या आलिया कहें। वो एक बार फिर शरारत से बोला था। वो कल रात के बाद इस रिश्ते को यूं ही तस्लीम कर चुका था। शायद ये सब कुछ ऐसा ही होना लिखा था। तो हाया बताएं कहाँ जाना है आपने? वो प्लेट में बिल्कुल सर घुसाकर बैठी थी कि पुप्पो के मुखातिब करने पर गड़बड़ाई। हादी की शरारती निगाहों से खाइफ नजरों से देखा, जो मुस्कुराहट छुपा गया था। मेरे ख़्याल से इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है फूफो, इसने बहाना बनाया है। क्यों ज़रूरत नहीं है? बस फॉर्म डन हो गया। फ़िलहाल मैं अस्पताल से ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं ले सकता। मगर हम कल ही कश्मीर जा रहे हैं और वलीमे के बाद जहाँ ये कहेंगी वहाँ चले जाएँगे। वो हूँ ना हूँ शरारत के मूड में था। तंग ना करो मेरी बेटी को। अच्छा मैं कुछ दिन के लिए अपनी दोस्त के यहाँ शादी में जा रही हूँ। मेरा नहीं ख्याल तुम चलना चाहोगे। वैसे ज़रूरत भी नहीं। तो मेरी कल सुबह की इस्लामाबाद की फ़्लाइट है। वो मुतमईन लहजे में बोली थी तो वो दोनों ही समझकर सर हिला गए थे। शर्मीन अपनी दोस्त के यहाँ शादी पर इस्लामाबाद चली गई थी, जबकि हादी के बारहा इसरार पर हया भी अपनी तबीयत के बोझलपन के पेश नज़र बगैर हिज्जत के कश्मीर के ट्रिप के लिए राजी हो गई थी। इन दोनों के दरमियान नाराज़गी होना हो बरकरार थी। हया के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी, मगर हादी माथे पर शिकन लाए बगैर इसका हर नाज नखरा उठा रहा था, इसकी बातें सुन रहा था। कश्मीर की ठंडी हवा में हल्की सी नमी थी और पहाड़ों पर उतरती धुंध ने मंजर को जैसे ख्वाब बना दिया था। आया शाल अपने गिरद लपेटे लकड़ी की रेलिंग के पास खड़ी थी, जहां से नीचे बहता झील का पुरसुकून पानी सामने के बर्फ पोश पहाड़ों की तस्वीर को अपने अंदर समोए हुए था। हादी चंद कदम पीछे खड़ा इसे देख रहा था। ये पहली बार था कि वो दोनों शादी के बाद यूं तन्हा, खामोश और एक दूसरे के बेहद करीब थे। सर्दी लग रही है। हया ने थोड़ा चौंक कर पीछे देखा, जो इसके ऐन पीछे खड़ा था। इसके गाल सर्दी और शर्म के मिलाप से हल्के गुलाबी हो रहे थे। नहीं ठीक हूँ, वो धीरे से बोली और निगाहें दोबारा झील पर डाल दी। हादी अब इसके बालों से उठती महक अपने सीने में उतार रहा था।
हाथी इसके बराबर खड़ा हो गया। कुछ लम्हों तक दोनों पर खामोशी छाई रही, लेकिन वो खामोश तकलीफें नहीं थी, जैसे दोनों दिल आहिस्ता-आहिस्ता एक दूसरे की मौजूदगी को कबूल कर रहे हैं। बदगुमानी के बादल छट रहे थे। हादी ने धीरे से इसकी शाल का किनारा दुरुस्त किया। हया की सांस एक लम्हे को रुक गई, हाथ बेख्तियार शाल को मजबूती से थाम लिया। तुम यूं पीछे होकर खड़े हो ना। वो तजब्बस का शिकार गिड़गिड़ाई थी। इस कुर्बत पर गाल दहक उठे थे। वो बरखाली में बोल गई, फिर फौरन नजरें झुका ली। हादी के लबों पर बहुत हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। तो क्या तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लग रहा? वो होठ दांतों तले दबाए गोया हुआ गाल इसके गाल से मिस हो रहे थे। हया ने हया से आंखें मूंद ली। हवा का झोंका आया तो शाल का एक कोना उड़कर हादी के हाथ से टकरा गया। वो इसे थाम कर आहिस्ता से हया के गिर्द लपेटने लगा और कमर में हाथ डालकर इसका रुख अपनी तरफ किया था। चलो आज का पूरा दिन सिर्फ हम दोनों का है। हया ने पहली बार हादी की आंखों में देखा, वो आंखें जिनमें पहली बार नर्म सा एतराफ था, जैसे वो इसे कबूल करने के लिए तैयार हो रहा हो। कहाँ जाएंगे? इसने हिचकिचाते हुए पूछा। जहाँ तुम्हारा दिल चाहे, हादी ने जवाब दिया, फिर इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मुझे भूख लग रही है। इसके कब्ल हादी मजीद कोई गुस्ताखी करता, वो गड़बड़ाकर बहाना तराश गई तो इसका बेहंगम कहका फिजा में बुलंद हुआ था। हा हा हा, यार मुझे तो लग रहा था कि अब बस तुम मुझे टाइटली हक करोगी, मगर हाय री किस्मत। वो सर पीछे फेंकता कहके पर कहका लगा रहा था, जबकि वो हफ्फा सी गुस्से से घूरती अंदर भाग गई। जो बालों में हाथ फेरता खुद भी इसके पीछे पड़ा था। कश्मीर की सर्द फिजा में सिर्फ इन दोनों की खामोश धड़कनें सुनाई दे रही थी। गाड़ी झटके खाती मुड़ती हुई सड़क पर ऊपर चढ़ रही थी। दोनों तरफ घने दरख्त और ठंडी हवा का झोंका अंदर आ रहा था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, सामने फैली हुई पैर तनाशी की बुलंदी ने हया को खौफजदा कर दिया था। आदि ने गाड़ी पार्क की और बाहर निकलकर गहरी सांस ली। वेलकम टू पेड़ चनासी, कश्मीर का सबसे खूबसूरत स्पॉट। वो मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखने लगा। कपल का पसंदीदा। हया के कदम ब खुद रुक गए। इसने सामने फैले बादलों को पहाड़ से टकराते देखा तो जैसे दुनिया थम गई। ये सब हकीकत में इतना खूबसूरत है। इसकी आवाज़ हैरत ज़दा सरगोशी में बदली हुई थी। हाथी इसके बराबर आकर खड़ा हो गया। लोग तस्वीरें देखकर आधा कश्मीर पसंद कर लेते हैं, असल मंजर देखकर पूरा दिल हार देते हैं। हया ने इस सारे लम्हे में पहली बार इसकी तरफ देखा और दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। शायद वो एक लम्हे के लिए हाथी की बात समझने की कोशिश कर रही थी। आसपास कई जोड़े खड़े तस्वीरें बना रहे थे। कुछ हाथों में हाथ डाले थे, कुछ हवा के झोंकों में दुपट्टा संभालती हंसी रोक रहे थे। हया का दिल अजीब सी घबराहट और खुशी के दरमियान फिसल गया। ये सब इसके लिए नए और अनजाने एहसासात थे। हादी ने आहिस्ता से कहा, चलो वहां चलते हैं जहां से पूरा मुजफ्फरबाद नजर आता है। वो दोनों लकड़ी की बाड़ तक पहुंचे। नीचे शहर छोटे छोटे जगमगाते घरों की तरह दिखाई दे रहा था और ऊपर कभी-कभार बादलों का टुकड़ा बिल्कुल पास से गुजर जाता, जैसे हाथ बढ़ा हो तो छू लो। एक झोंका आया और हया का दुपट्टा हवा में उड़ गया। वो घबरा कर इसे संभालने लगी तो हाथी ने आगे बढ़कर दुपट्टा पकड़ लिया। आहिस्ता गिर जाओगी। हया के कदम वाकई लरज गए थे। हादी ने दुपट्टा इसके कंधों पर डाल दिया। ये जगह बहुत बुलंदी पर है, हादी ने नर्म आवाज में कहा। डरो मत, मैं हूं ना। इसके हाथ खुद ब खुद हया के हाथ तक आए और इसने बहुत नरमी से, बहुत एहतराम से हया की उंगलियां थाम ली। हया के दिल में बेनाम सी हरारत उतर गई। नीचे पहाड़, ऊपर आसमान और दरमियान में सिर्फ वो दोनों। ये पहली जगह है जहां मैं चाहता था कि हम साथ आएं। हादी ने एहतराफी लहजे में कहा। क्यों? हया ने आहिस्ता से पूछा। हादी मुस्कुराया। क्योंकि यहाँ लोग मोहब्बत से नहीं, एहसास से करीब आते हैं और मैं चाहता था हम दोनों भी एक दूसरे को थोड़ा समझें। बर्फ के हल्के ज़रात इसके इर्द-गिर्द गिरने लगे और वो दोनों पहली बार बगैर किसी झिझक के एक दूसरे के साथ खड़े थे, जैसे दिलों के दरमियान की दूरी अब धुन के साथ घुलने लगी हो। कश्मीर की ठंडी हवाओं और पहाड़ों की खुशियों में गुजरे हुए 7 दिन जैसे हया और हादी की याददाश्तों पर नक्श हो चुके थे। अब वापसी का वक्त था और मुजफ्फरबाद से इस्लामाबाद की तरफ जाती शटल में दोनों साथ बैठे थे। गाड़ी चलते ही हया ने शीशा नीचे गिराया। ताज़ा हवा के झोंकों ने इसके बालों को हल्के छुआ तो हादी बिना कुछ कहे मुस्कुरा पड़ा। पता है, यहाँ से वापसी पर लोग ज्यादा उदास होते हैं, हादी ने नरमी से कहा।
हाया ने रुख इसकी तरफ मोड़ा, आंखों में हल्की सी चमक थी। मैं उदास नहीं, बस दिल नहीं चाह रहा कहीं और जाने को। हादी ने इसके हाथ पर हाथ रख दिया। फिर कभी दोबारा आएंगे, पूरा कश्मीर घूमेंगे। रास्ते में दरियाए नीलम के बहते पानी की आवाज कभी कभी खिड़कियों से टकरा कर अंदर आती, तो एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी गाड़ी में फैल जाती। हया ने अपना सर सीट के साथ टिका दिया और आहिस्ता से बोली, हादी शुक्रिया। हादी ने हल्के से हैरत भरी आवाज में पूछा, किस बात का? मुझे वो सब दिखाने के लिए जो कभी सोचा भी ना था। हादी की आंखों में नरमी उतर आई। ये पहली मर्तबा था कि हया ने दिल से कुछ कहा था। हया, ये तो सिर्फ शुरुआत है। 1.5 घंटे बाद जब जहाज के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे तो शाम के साए फैल चुके थे। फ्लाइट के दौरान हया खिड़की से बाहर बादलों को देखती रही और आधी से देखता रहा, जैसे इन चंद दिनों में इन दोनों के बीच की दूरी को आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया हो। कराची एयरपोर्ट पर गाड़ी में बैठते ही गर्म हवा के झोंके ने कश्मीर की ठंड की याद मजीद गहरी कर दी। हया ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, कश्मीर वाकई दिल में रह जाता है। हादी ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए जवाब दिया, और कुछ यादें हमेशा के लिए दिल में जगह बना देती हैं। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन दोनों के चेहरों पर कश्मीर के सफर की चमक अभी तक कायम थी। इन दोनों को कश्मीर से आए काफ़ी दिन हो गए थे। ऐसे में शर्मीन ने इन दोनों का वलीमा अरेंज किया था और अपने मैके वालों को भी वलीमे की दावत दी थी। सब लोग पुरानी रंजिशें फिलहाल भूल कर इन्हें दुआएं देने के लिए साथ आ खड़े हुए थे। वलीमे की तकरीब को 4 चाँद लग गए थे। हया के लिए यही था कि सब इसकी खुशी में शामिल हो गए थे और किसी ने भी कोई पुरानी बात नहीं की थी। हॉल में दाखिल होते ही सामने एक वसी स्टेज बना हुआ था, जिसे सफ़ेद सिल्वर फूलों से इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। छत से लटकते क्रिस्टल लाइट्स हर तरफ चमक बिखेर रहे थे, जैसे पूरे माहौल में हल्की सी रोशनी बिखरी हो। पस मंज़र में मध्यम इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हॉल की खामोशी में नरमी बोल रहा था। दूल्हा हादी फॉर्मल फोर पीस सूट में मलबूस था। इसके बाल सलीके से सेट थे। आज इसकी शख्सियत की छप ही निराली थी। हाया सिल्वर और आइस ब्लू के मिक्सड शेड का लहंगा पहने स्टेज पर हादी के साथ बैठी थी। इसके लहंगे पर नाजुक मोतियों और स्कार्ट्स की लड़ियां सी बनी झिलमिलाती कारीगरी हर बार हार की रोशनी बदलने पर एक नई चमक पैदा कर रही थी। दुपट्टा सर पर हल्के से पिन किए साथ जमा हुआ था, जिसके किनारों पर बनी सिल्वर गोटा पट्टी से शहजादियों जैसा रूप दे रही थी। इसका मेकअप सॉफ्ट था, पिंक ग्लोज के साथ चमकता हुआ चेहरा, आंखों में हल्की सिल्वर स्मोकी शेड्स और हाथों में मेहंदी की गहरी डिजाइन जो तस्वीर को मुकम्मल कर रही थी। स्टेज के सामने पड़े गोल मेजों पर सफेद टेबल पकड़े साथ सिल्वर रंस बिछे थे। इन पर रखे शीशे के सेंट्रल पीस फूलों और मोमबत्तियों की रोशनी में पूरे हाल को गर्मजोशी का एहसास दे रहे थे। मेहमानों की आहिस्ता चहलकदमी, कैमरों की मुसलसल चमकती फ्लैशें, फोटोग्राफर्स के ज़ाविये बदल-बदल कर तस्वीरें लेना, सब कुछ इस तकरीब को एक शाहाना मंज़र बना रहा था। सर्विस स्टाफ सिल्वर ट्रे लिए बड़ी नज़ाकत से मेहमानों के दरमियान चल रहे थे, जबकि बुफे की मेज़ पर पाकिस्तानी और कॉन्टिनेंटल डिशेज़ एक तरतीब से सजी हुई थी। बिरयानी की महक, व्हाइट कौरमे की खुशबू और स्टेक की ग्रिल मार्क्स हद से ज़्यादा दिलकश दिखाई दे रही थी। स्टेज पर बैठे दोनों के सामने हल्का सा धुआंनुमा फोग इफ़ेक्ट छोड़ गया था, जिससे स्टेज का मंज़र ख्वाबों की किसी फ़िल्मी झलक में बदल गया था। हादी और हया के पीछे बड़े सिल्वर मोनोग्राम एच पूरी तकरीब का फोकल पॉइंट बना हुआ था। आज तो तुम मुझे शाहरुख चित कर रही हो। वो साथ बैठी हया के कान में धीरे से गुनगुनाया, जो मजीद खुद में सिमट सी गई थी। आज तुम्हारी खैर नहीं। इसने जानकर छेड़ना जरूरी समझा, जबकि इन दोनों की दूरियां हो न हो बरकरार थी। हवा में शाम की नमी बिखरी हुई थी। हया ने बस चंद लम्हे पहले हादी का मैसेज पढ़ा था कि वो अस्पताल में एक अहम मीटिंग में है और थोड़ी देर बाद निकलेगा। इसने सोचा वक्त गुजारने के लिए बाहर कैफे से चाय ले आए, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि आज की चंद तन्हा मिनट इसकी पूरी जिंदगी को दोबारा आजमाइश में डालने वाले हैं। चाय का कप हाथ में थामा के अचानक पीछे से कदमों की आवाज इसके दिल पर एक अजीब सी लकीर खींच गई। वो पलटी और सामने फरहान को खड़ा पाकर एक लम्हे को सांस लेना भी भूल गई। वही चेहरा, वही आंखें, मगर आज इनमें कुछ और था, जैसे वक्त ने इन आंखों में हसरत और थकन की नहीं बुझा दी हो। हया के कदम खुद ब खुद पीछे हटे। तुम? फरहान ने एक गहरी सांस भरी। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। ये जुमला हया के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं था। एक ऐसा आदमी जो इसकी जिंदगी में सिर्फ अजियत छोड़कर गया था,
आज इसके सामने यूँ खड़ा था जैसे इसे हक हो कि वो वापस आ जाए। हया का दिल धड़का मगर इस बार खौफ से नहीं, गुस्से से। तुम यहाँ क्या करने आए हो? इसकी आवाज़ काँप रही थी मगर मज़बूत थी। फरहान चंद कदम आगे बढ़ा जैसे शायद इसे यकीन हो कि इसे खुशामदीद मिलेगा। मैं सब ठीक करने आया हूँ हया। मैंने गलत किया था, बहुत गलत। मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो हादी बस तुम्हारी मदद कर रहा था। मुझे अब एहसास हुआ कि बस। हया ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। तुमने जो किया वो गलत नहीं, गुनाह था, ज़ख्म था। और तुम आज किस लिए आए हो? सफाई, हमदर्दी, पशेमानी? फ़रहान ने गहरी साँस ली। मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मुझे अब समझ आया कि तुम कितनी अच्छी औरत थी। मैं हया को लगा इसका खून खौलकर चेहरे तक आ गया हो। पछतावे के अल्फाज़ माँग रहा था। वो कहीं यकीन नहीं कर पाए। तुमने मुझे छोड़ा था फ़रहान, किसी वजह से नहीं। अपनी अना, अपने शक और अपने गुस्से की वजह से। आज क्यों आए हो? क्यों इतने अरसे बाद? क्यों? फरहान ने नज़रें नीचे की, फिर अचानक उठाकर देखा, क्योंकि मैं तुम्हें खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे पता चला तुम खुश हो आदि के साथ, इसे देखकर, बस मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये जुमला हया के अंदर जैसे बिजली बनकर गिरा। तो मसला ये था कि मैं खुश हूँ तुम्हारी इजाज़त के बगैर। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं कमज़ोर था, गलत था, लेकिन तुम मुझे दोबारा एक मौका दो। हया का ज़ब्त टूट गया। इसने कदम बढ़ाए और भरपूर ताकत से फरहान के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। हवा जैसे लम्हे भर को रुक गई। फरहान वहीं जम गया। इसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान उभरता देख हया को कोई अफ़सोस नहीं हुआ। इसकी आँखें आग की तरह भड़क रही थीं। ये सिर्फ़ तुम्हारा वो थप्पड़ है जो मैंने कभी अपने दिल पर मारा था, जब तुमने मुझे बेइज़्ज़त किया, जब तुमने मुझे तन्हा छोड़ा, जब तुमने मुझे बता दिया कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हूँ। हया, मैं बस, निकल जाओ अभी इसी वक़्त, इसने दाँत पीसते हुए कहा। फरहान ने एक आखिरी कोशिश की, सुनो तो। इस बार इसकी आवाज़ इतनी मज़बूत थी, डोंट। फरहान के कदम खुद ब खुद पीछे हो गए। वो मुड़ा, मगर जाने से पहले एक और जुर्म कर दिया। अपना मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया और चलते-चलते कुछ सेकंड रिकॉर्ड किए, जैसे वही रिकॉर्डिंग जिसमें सिर्फ़ वो लम्हे हों, सिर्फ़ वो ज़ावियाँ हों जो एक वाक़ये को तोड़-मरोड़ कर पेश कर दें। एक ऐसा क्लिप जिसे देखकर किसी भी शौहर का दिल चीर जाए। इसने वो रिकॉर्डिंग सेंड कर दी, बराह रास्त हाथी के पैगाम पर। लुक व्हाट्स योर वाइफ इज़ डूइंग बिहाइंड योर बैक। हया को अंदाज़ा नहीं था कि फरहान जाते-जाते ज़हर का आखिरी कतरा भी इसकी ज़िंदगी में डाल चुका है। जहाज़ों का शोर, गाड़ियों की आवाज़ें, शाम की हवा, हर चीज़ एकदम शोर में बदल गई थी। इसने पीछे से दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते फरहान की आवाज़ से पीछा छुड़ाया था, जिसने इसकी ज़ात का तमाशा बनाकर रख दिया था। वो इसके लिए कोई खिलौना नहीं थी कि जब दिल भर जाए तो फेंक दो और दिल मचलने लगे तो दस-दस में जकड़ लो। वो ना चाहते हुए भी रो रही थी, मगर ना जाने क्यों, मगर ये फरहान नामी शख्स की अज़ियत के लिए आखिरी आँसू थे। शाम धीरे-धीरे रात में ढल रही थी। हादी के घर की बालकनी से बाहर आसमान पर सुरखमाइल नारंगी रोशनी अब खत्म होने को थी, मगर अंदर कमरे में एक ही अलग सी चमक थी। वो चमक हया ने पैदा की थी। वो आज पूरे दिल, पूरी चाहत और मुकम्मल उम्मीद के साथ तैयार हुई थी, और आज इस रिश्ते की वो पहचान बताना चाहती थी जो अभी तक दोनों के दरमियान धीरे-धीरे हिचकिचाहट के साथ सांस ले रही थी। आईने के सामने खड़ी वो सुर्ख साड़ी में बेहद दिलकश लग रही थी। साड़ी का गरर सा नरम कपड़ा इसकी कमर से लटकता हुआ फर्श को छू रहा था, और पल्लू के किनारे पर बने सुनहरे धागों के नक्श इसके वजूद पर रोशनी के साथ झिलमिला उठते। हल्का सा ग्लो मेकअप किया था, गुलाबी लिपस्टिक, सुर्खी की हल्की झलक, आंखों के गोशे पर बिखरे नरम शिमरी शेड, जैसे वो अपने हाथों से खुद को मोहब्बत का तोहफा बनाना चाहती हो। आज वो बीवी बनकर अपने शौहर के सामने खड़ी होना चाहती थी, सिर्फ जबरदस्ती के बंधन में बंधी औरत नहीं। इसने आईने में खुद को देखा, एक लम्हे को मुस्कुराई, एक लम्हे को उम्मीद की लौ इसके दिल में रोशन हुई। दिल में हज़ार खुशियाँ थीं, कमरे में मेहंदी और इत्तर की हल्की सी खुशबू फैली थी। इसने हादी की पसंद की खुशबू लगाई थी। घर के लाउंज में इसने एक छोटी सी चाय की टेबल भी सेट कर दी थी। चाय, इसके पसंदीदा बिस्किट, टीवी की आवाज़ कम थी, लाइट्स मद्धम थी, सब कुछ एक पुरसुकून माहौल बनाने की कोशिश में। मगर दरवाज़ा बजते ही हया का दिल धड़क उठा था। हादी आ गया था। वो दौड़कर दरवाज़े तक पहुँची, दिल हाथ में था। साँसें तेज़ थीं, दरवाज़ा खुला और सामने वही थका हुआ, उलझा हुआ, हल्का पसीने-ज़दा चेहरा था हादी का। स्टेथोस्कोप अभी भी इसके गिर्द लटक रहा था, और वो अस्पताल की थकन अपने साथ घर ले आया था। हया ने आहिस्ता से मुस्कुराहट सजाई, "हादी आए मैं।" मगर हादी ने इसकी तरफ देखे बगैर जूते बैग सोफ़े पर फेंका और लंबी साँस लेकर बोला, बहुत थक गया हूँ, प्लीज़ शोर ना करना। ये जुमला था या किसी दरवाज़े की तेज़ बंदिश? हया के अंदर कुछ टूटा, बहुत आहिस्ता मगर बहुत गहरा। वो इसके सामने खड़ी थी, सुर्ख साड़ी में,
मोहब्बत की पूरी ख्वाहिश के साथ, मगर हादी ने इसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। दिल के अंदर जो दिया रोशन था वो हल्का-सा लर्ज़ा लेकिन बुझा नहीं। इसने हिम्मत की, नरमी से कहा, मैंने चाय बनाई है अगर आप। हादी थके हुए अंदाज में कमर से शर्ट निकालते बोला, नहीं चाहिए प्लीज़, मैं बस सो जाना चाहता हूँ। हया ने आगे बढ़कर कहा, सिर्फ़ 5 मिनट बैठ जाएँ, मैं आपके लिए थोड़ा-सा। हादी ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। हया, मैंने कहा ना थका हुआ हूँ, समझ नहीं आता क्या? जो जुमला नरम नहीं था, इसमें झुंझलाहट थी, बोझ था, तलख़ी थी। हया को महसूस हुआ जैसे इसके दिल के ऊपर किसी ने पत्थर रख दिया हो। वो पल्लू के किनारे को मुट्ठी में दबाए खड़ी रही। आपने मुझे देखा भी नहीं आदी। ये जुमला इसके दिल से निकला था, होठों से नहीं। फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी, वो आगे आई, हादी के सामने खड़ी हुई ताकि शायद वो इसे देख ले। मैं थोड़ी-सी तैयार हुई थी। मैंने सोचा शायद हम आज कुछ वक़्त। हादी ने इस बार सर्द, बेरहम अंदाज में इसकी बात काटी। हया प्लीज़ डोंट स्टार्ट ड्रामा नाउ, मैं वाक़ई बहुत थका हुआ हूँ। इसके लहजे में हया के सीने में जलती हुई उम्मीद की आखिरी लौ भी बुझा दी। ड्रामा? वो खुद को सजा कर लाई थी, अपनी शादी को एक मौका देना चाहती थी और इसके लिए ये सब ड्रामा था। हया की आँखें भर आईं, मगर वो इसे दिखाना नहीं चाहती थी। वो मज़बूत बनना चाहती थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसने टूटी हुई आवाज़ में कहा। हादी ने बेसब्री से गहरी साँस ली और गुस्से से कह दिया, हया मुझे इस वक़्त तुम्हारी बातें बर्दाश्त नहीं होती। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। एकदम जैसे किसी ने पूरी कायनात इसके सर पर फेंक दी। बर्दाश्त नहीं होती? वो हया जिसने कभी आवाज़ भी नहीं उठाई, जिसे आज सिर्फ़ अपने शौहर से थोड़ी-सी तवज्जो चाहिए थी, इसकी पलकें भीग गईं, इसकी साँसें भारी हो गईं, मगर वो कुछ भी कहे बगैर मुड़ी और आहिस्ता-आहिस्ता अपने कमरे की तरफ चल दी। कदम भारी थे जैसे किसी ने इसके पाँव में ज़ंजीरें डाल दी हों। हाल की रोशनी धुंधला गई। इसके दिल की धड़कन मद्धम हो गई। कमरे में आकर इसने दरवाज़ा बंद किया। आहिस्ता नहीं, बहुत आहिस्ता। वो नहीं चाहती थी कि हादी को लगे कि वो नाराज़ है। वो सिर्फ़ टूट चुकी थी। दरवाज़े के पीछे खड़े-खड़े वो रो पड़ी। हिचकियों समेत रोती चली गई। जैसे दिल का बोझ आँसू बनकर निकल रहा हो, जैसे उम्मीद के मरने पर भी आँखों में बारिश होना ज़रूरी हो। इसने साड़ी का पल्लू चेहरे पर रखा और आहिस्ता ज़मीन पर बैठ गई। मैंने क्या गलत किया? क्या? इसे लगा जैसे घर की दीवारें भी इसके साथ रो रही थी। जैसे इसका मेकअप, इसके ख्वाब, इसकी ख्वाहिशें सब बह रहे हों। वो अपनी शादी को खूबसूरत बनाना चाहती थी, मगर मोहब्बत एक तरफ की कोशिश से नहीं चलती। वो रोती रही और बाहर हादी अपनी तखन में डूबा रहा, लाइल्म, बेखबर, इस औरत के दिल के टूटने से बेनियाज, जैसे इसने अपना नाम दिया था। ये रात दोनों के दरमियान एक नई खामोशी छोड़ने वाली थी। एक ऐसी खामोशी जिसे सिर्फ दिल की धड़कनें ही सुन सकती हैं। सुबह की सर्द हल्की हवा पर्दों को छूकर कमरे में दाखिल हो रही थी। सूरज अपनी नर्म रोशनी के साथ कमरे की दीवारों को जगमगा रहा था, मगर इसमें रोशनी से भी ज्यादा खामोशी थी, बहुत गहरी, बहुत महसूस होती हुई। हया बिस्तर से वो बहुत पहले उठ चुकी थी। इसने आज हादी के लिए नाश्ता बनाया था, लेकिन बस रस्म के तौर पर। ना आवाज में नरमी थी, ना आंखों में चमक। वो हर चीज खामोशी से कर रही थी, बगैर किसी मुस्कुराहट के, बगैर किसी इंतजार के। हादी कमरे से निकला तो इसने डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हया को देखा। इसके चेहरे पर मामूली सी भी चमक नहीं थी, जो हमेशा सुबह के वक्त इसके चेहरे पर देखी जाती थी। आंखें सूजी हुई थी, मगर वो नजर चुराने की कोशिश कर रही थी। हादी के दिल में कुछ चुभ गया। गुड मॉर्निंग, वो आहिस्ता से बोला। हया ने सर हिलाया, बस सर हिलाया। कोई जवाब नहीं। हादी चंद लम्हे इसे देखता रहा। वो समझ गया था कि इसने कल रात बहुत गलत किया था। वो बैठकर चाय लेने लगा, मगर हया बगैर कुछ कहे किचन में चली गई। ये खामोशी, ये दूरी हादी के अंदर कहीं गहरा गूंज रही थी। लाउंज में आहिस्ता-आहिस्ता कदमों की आवाज़ आई, मगर इसमें वो प्यार नहीं था जो पहले होता था। हया ने टेबल पर प्लेट रखी, खा लीजिए, 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा। लहजा खुश था, बिल्कुल बेएहसास। हादी ने फौरन पलटकर इसे देखा। हया, तुम नाराज़ हो? इसने नज़रें मिलाए बगैर कहा। नहीं, क्यों नाराज़ होंगी? मगर इसकी आँखों का खालीपन और कह रहा था। हादी के दिल में बेचैनी सी लहर दौड़ गई। इसने इसकी कल की तैयारी याद की। वो सुर्ख साड़ी, वो चमकती आँखें, वो चाहत, और फिर इसे अपना रवैया याद आया। तल्ख़ी, झुंझलाहट, सर्द लहज़ा। इसे लगा जैसे किसी ने इसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। वो उठा, हया के करीब आया, नरमी से बोला, मैंने कल रात बुरा बर्ताव किया, इसके लिए सॉरी।
हया कुछ लम्हे इसकी आँखों में देखती रही, फिर पलट गई। कोई बात नहीं, हर इंसान थक जाता है, मैं समझती हूँ। मगर इसी खामोशी में एक दर्द था, एक ऐसा दर्द जिसने हादी को अंदर तक हिला दिया। वो आगे बढ़ा, इसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, मगर हया हल्के से पीछे हट गई। मैं तैयार हूँ, मुझे थोड़ी देर में यूनिवर्सिटी जाना है। आपको लेट हो रहा है? हादी का हाथ हवा में ही रह गया। इसने आहिस्ता से हाथ नीचे कर लिया। ये दूरी, ये सर्दपन इसके दिल को चीर रहा था। वो जानता था कि वो सिर्फ नाराज नहीं, वो दुखी है और इसकी वजह सिर्फ वो खुद था। कुछ देर बाद हादी ड्यूटी के लिए निकल गया और वो पूरा दिन एक अजीब सी बेचैनी के साथ गुजारता रहा। हर मरीज के दरमियान, हर वक्फे में, हर कदम पर इसे हया का चेहरा याद आता रहा। वो सुर्ख साड़ी में खड़ी खामोश हया, वो सुबह की ठहरी हुई आंखें, वो दूरी। इसे एहसास हो रहा था कि अगर इसने कोशिश ना की तो ये खामोशी मजीद गहरी हो जाएगी। ड्यूटी के बाद वो सीधा घर नहीं गया। एक जेवरात की दुकान पर रुका। कई डिजाइन देखने के बाद इसकी नजर एक नाजुक से सेट पर पड़ गई। सुर्ख पत्थरों वाला लॉकेट, बारीक चेन, छोटा सा ब्रेसलेट, बिल्कुल वैसा जैसा हया पर जचता था। पैक कर दें ये सब। घर पहुंचते वक्त इसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, वो हया को फिर मुस्कुराता देखे। घर का दरवाज़ा खुला तो लाउंज में अंधेरा था। सिर्फ किचन की मद्धम रोशनी चल रही थी। हया शायद अपने कमरे में थी। हादी ने गहरी सांस ली और आहिस्ता-आहिस्ता इसके कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा नीम खुला था। वो अंदर गया। हया बेड के किनारे बैठी थी, अपनी किताब में गुम। मगर इसकी आंखों की उदासी साफ नज़र आ रही थी। हादी दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाकर खड़ा हुआ। मेरी बात सुनो हया, इसने नजरें नहीं उठाई। हादी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और इसके सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। हया चौंक कर इसे देखने लगी। इसकी आंखों में नमी थी, मगर वो फौरन पलके झुका गई। हादी ने जेब से छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला। मैंने सोचा था कि शायद तुम्हें पसंद आए। हया ने हैरत से देखा। हादी ने बॉक्स खोला। सुर्ख पत्थर वाला खूबसूरत सेट जगमगा उठा था। इसके चेहरे का रंग बदल गया। वो वाकई हैरान थी, थोड़ी मुतासिर थी। तुम्हारे लिए खरीदा है? इस इस औरत के लिए जो कल बहुत खूबसूरत लग रही थी और जिसे देखने की मुझे हिम्मत नहीं थी। हादी की आवाज़ टूट रही थी। तुम मुझे माफ़ कर दो हया। हया के लब थोड़े से कँप-कँपाए। आपको ज़रूरत नहीं थी इतनी चीज़ें लाने की। ज़रूरत थी क्योंकि मैं सिर्फ़ तोहफ़ा नहीं दे रहा, मैं अपनी गलती का कफ़ारा माँग रहा हूँ। मैं नहीं चाहता तुम्हारी आँखों में कभी मेरी वज़ह से आँसू आएँ। इसने ब्रेसलेट उठाया और नरमी से इसकी कलाई पर पहनाने लगा। हया ने हाथ पीछे नहीं खींचा। ये ये बहुत खूबसूरत है, वो आहिस्ता से बोली थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये जुमला सुनते ही इसका दिल का भारीपन जैसे आधा पिघल गया। हादी की सच्चाई, इसकी नरमी, इसकी कोशिश, सब कुछ वाज़ेह था। हादी उठकर इसके करीब बैठ गया। इसने सोच लिया था इसने फ़रहान की तरह जाहिलों वाला रवैया अख्तियार नहीं करना और इसे इल्म था कि हया सिर्फ़ इसकी थी और जब वो मोम हो रही थी तो भला इसे क्या ज़रूरत थी अपनी बीवी को आज़माइश में डालने की। मैं थक जाता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन तुम पर नहीं आया। कल मैंने गलती से तुम्हें दुःख दिया, लेकिन आज मैं पूरी कोशिश से वो दुःख मिटा रहा हूँ। क्या तुम मुझे इजाज़त दोगी? हया की आँखों के गोशे भर गए। वो आहिस्ता से सर झुकाए बोली, मैं नाराज़ नहीं थी, बस दुखी थी हादी। हादी ने फ़ौरन इसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पता है और आज के बाद तुम दुखी नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। हया ने कुछ लम्हे इसके चेहरे को देखा, इसकी सच्चाई, इसकी मोहब्बत, इसकी कोशिश। वो मुस्कुरा दी। हादी का दिल जैसे सुकून से भर गया। वो आगे बढ़ा और इसकी पेशानी पर आहिस्ता से बोसा दिया। अब तो मान गई ना? हया ने सर झुकाकर कहा। हाँ, मान गई हूँ। कमरे की खामोशी अब ठहरी हुई उदासी नहीं थी। ये नरमी, राहत और मोहब्बत की खामोशी थी। घर में रोशनी फैलती गई, इसके इनके दिलों में भी। और यूं एक रात की गलती, एक सुबह की खामोशी, एक शाम की मोहब्बत में बदल गई थी। दोनों खुश थे, दोनों खुश, दोनों मुतमईन, दोनों एक दूसरे के साथ। दिल टूट कर मोहब्बत के सामने हार गया था। दोनों की मोहब्बत आज पाए तकमील तक पहुंच गई थी। शर्मीन अपने बाबा जान के घर थी और हया भाभी के साथ एडजस्ट हो रही थी। रंजिशें खत्म होने में वक्त लगता है, मगर जरूरी नहीं इनकी वजह से अपने हिस्से की खुशियां ठुकरा दी जाएं।
عباسی ہاؤس کے لوگ بھی کبھی نہ کبھی حیا سے مکمل راضی ہو ہی جاتے، مگر فی الحال وہ ہادی کی محبت کی بارش میں پور پور بھیگی اس میں سمٹی جا رہی تھی، ختم شد۔